So when you love what you do, you're always free and you're always busy. That's true. So that happened somewhere in 2017 when I quit my corporate job. And I realized that in corporate, there is a very segmented job role. Correct. And I wanted to do everything and a lot. Yeah. So I went to a beach town called Gokarna और वहाँ पे मैं पहाड़ पे बैठा हुआ था और समुंदर की लहरों को देख रहा था. And then that time somebody came and sat next to me and said hi. And I said hi. And she said, I am Maria. And I said, I am Geet. And he says, okay, Geet, so what do you do? I said, I don't know. हेलो हाय दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू लिविंग यूनिकॉर्न्स. सो आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें वी हैव विद अस मिस्टर गीत बत्रा. गीत, वेलकम टू लिविंग यूनिकॉर्न्स Thank you. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. Thank you, Priyanka. Yeah. सो आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें जो मिस्टर गीत है उनका जो प्रोफाइल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और डाइवर्सिफाइड है. इनफैक्ट गीत, मुझे खुद को भी समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी कि मैं कैसे डिस्क्राइब करूं. सो व्हाई डोंट यू ओनली टेल आवर व्यूअर्स कि आप क्या करते हैं. थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं खुद अपने शब्दों में एक्सप्लेन करूं. A lot of people know me as ex-corporate person who have been in HR and they have seen my videos on my YouTube and Instagram and they wonder what are my videos about and they also wonder ये आप author भी हो. I am someone who has the power of articulation. Whatever Okay. I learn from my environment, I articulate it in such a manner that other people understand it. So a lot of people could relate to me because they understand my language. I have been in corporate for 2 decades, and after 2 decades, I realized, am I doing everything that everyone is supposed to do, and is it working for me? Clearly, it was not working for me. If I was waiting for Saturday, Sunday to run out of my city for trekking or going out and traveling to a beach town, then I think it is not working for me. If I Correct. have to run away from this life, so I wanted to do something which I love to do. And I asked myself, if I love to do something, neither would it be work nor it would be leisure, but it would be both. So when you love what you do, you're always free and you're always busy. That's true. So that happened somewhere in 2017 when I quit my corporate job. And I realized that in corporate, there is a very segmented job role. Correct. And I wanted to do everything and a lot. Yeah. So I went to a beach town called Gokarna और वहाँ पे मैं पहाड़ पे बैठा हुआ था और समुंदर की लहरों को देख रहा था. And then that time somebody came and sat next to me and said hi. And I said hi. And she said, I am Maria. And I said, I am Geet. And he says, okay, Geet, so what do you do? I said, I don't know. That is how I begin. I don't know. Correct. And this person says, you always know. And she got a call on her mobile and she excused herself and went away. She left me with this question. Question. And one of my friend, 3 months back, she had become a life coach and she says a life coach is about a question. About a question. And when I was thinking about that question, I came to know that I would like to take people where they want to go to be the best version of who they are. Correct. That's when I became a life coach. How sweet. And I attended a coach training program. I worked with various coaches, learned from my master coach. 2 years later, I realized that everybody is calling themselves life coach. Yeah. So I was not very happy about it because they do not have the understanding of coach and coaching. They thought that you are a master in something and you are teaching others is coaching. That is not coaching. So sports coaching is a different kind of coaching. Life coaching is a different kind of coaching. Of course. If you think that your life coach need to be someone perfect who is almost like God, no, he doesn't need to be. Even a 15-year-old kid can become a life coach based on the tools that he uses. If he understands how to ask a question,
he would be able to coach. करेक्ट. So I became a life coach, but there was something else which was very much aligned to the coaching methodology. So I became a certified facilitator of a particular kind of workshop which are to provide awareness. Provide And I awareness. loved that work. Yeah. And I did that work until recently, and I'm still doing in different ways. So I became a healer. I became a facilitator of these workshops, and now I'm a certified Heal Your Life workshop facilitator, which is by Louise Hay. Okay. So I follow her methodology, help people come out of their thinking patterns, their feelings, their emotions, past ह्यूमन traumas. बिहेवियर एनालाइजिंग भी सर क्या इजी लैंग्वेज में कैन वी से Actually, good question that you asked. Yesterday I was thinking, आजकल ना सब कुछ इतना ज़्यादा अच्छे से आर्टिकुलेट कर दिया है कि एनालिसिस की ज़रूरत ही नहीं है. There are so many terms which are there, Correct, correct. like cognitive dissonance. हाँ. There is narcissistic tendency or सबको narcissistic थोड़ी समझ में आता है ये क्या है. ये अब सबको समझ में आने लगा है. तो Google तो पहले कर ही क्या लेते था? होंगे ना सर सब बिल्कुल कर ही लेते हैं. मतलब गूगल बाबा जिंदाबाद. आफ्टर गॉड इट्स गूगल, राइट? ट्रू. तो तो कुछ ऐसा है कि ये जो टर्म्स हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है, पहले अवेलेबल नहीं थी. नाउ व्हाट अ साइकोलॉजिस्ट यूज टू डू, वो साइकोलॉजिस्ट अपने पास ही ये इन्फॉर्मेशन रखता था, क्लाइंट को नहीं बताता कि यू आर लिविंग अच्छा. विद समवन नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी. करेक्ट करेक्ट. तो व्हाट दे यूज टू डू, दे यूज टू डू योर थेरेपी. आज के ज़माने में सीधा बता दिया जाता है और उनको छोड़ दिया जाता है गूगल के भरोसे, और उनको बता दिया जाता है आप ये करो ये करो ये करो. करेक्ट. So now things are much more simplified. राइट. So you know, psychologist और life coach का काम बहुत अलग है. हाँ ऑफ कोर्स. है ना. कई बार लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है कि उनको क्या बीमारी है, उनको तो आप दवाई दे दो. और डॉक्टर कितना भी समझा ले, कुछ चीज़ें लोगों को समझ में नहीं नहीं आएंगी. आती हैं. Correct. सबको नहीं आएंगी. हाँ. हो सकता है उनके साथ जो अटेंडेंट है उसको पूरा समझ में आ जाए, और कई बार मरीज को पूरा समझ में आ जाए, अटेंडेंट को कुछ सो भी दैट नहीं डिपेंड्स समझ ना, में. क्योंकि तो कई बार इसलिए पेशेंट अकेला ना जाके किसी को गार्जियन को भी ले जाते हैं कि Correct. दैट वो उसको शायद समझ में आ जाए. एक से दो भले, मतलब एक से दो भले. हाँ. मतलब मैं अपने व्यूअर्स को बस एक बार ये बताना चाहती हूँ कि इजी लैंग्वेज में कि हम जो लाइफ कोचिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि गीत का जो एक्सपीरियंस रहा है अबाउट लाइफ कोच, अबाउट एज अ हीलर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बातें हम लोग करने वाले हैं. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि ये एपिसोड जो है वो आप एंड तक ज़रूर देखें, बिकॉज यू नेवर नो कि आप जो ढूंढ रहे हैं वो आपको आज मिल सकता है. सो गीत, जैसे कि आपने एग्जांपल सेट किया और मैंने बोला था कि व्हाट इज़ दिस लाइफ कोच. ओके. तो लाइफ कोच इज समवन जो आपको अपनी नॉलेज से नहीं आंसर देगा. जी. फॉर एग्जांपल लेट्स से सचिन तेंदुलकर को ले लेते हैं. अगर वो कोच बन जाएं तो लोग उनके पास सिर्फ क्रिकेट के लिए ही जाएंगे. करेक्ट करेक्ट. करेक्ट. क्योंकि वो बता सकते हैं कि कैसा क्या करना है. बट इसका मतलब आप उसी के कोच के पास जाओगे जो आपकी लाइफ की सिचुएशन से जूझा हुआ हो. करेक्ट. That fails the entire criteria of a अच्छा. life coach. ओके. The life coach is someone who uses a particular methodology mostly to make them think. अगर हम बात करें दुनिया का सबसे पहला कोच कौन था, तो वो श्री कृष्णा थे. पूरी गीता बांचने की जरूरत इसीलिए थी बिकॉज दैट इज द कोचिंग मेथोडोलॉजी. राइट. Coach may bring some awareness from their own knowledge, bring it on the table, but let the participant or let the coachee choose. Correct. तो श्री कृष्णा कोच भी थे और कोचवान भी थे. वाह. तो अगर आप देखें पूरी गीता में अर्जुन यूज टू आस्क क्वेश्चंस, इनफैक्ट नॉट क्वेश्चंस, क्लैरिटी, एंड कृष्णा यूज टू आस्क क्वेश्चंस, मेकिंग हिम थिंक. So if you are working with me as your life coach, I'm not going to force you into one particular direction. If you are working and you say, I think I should change my job, I would help you in thinking to change your job until you conclude that whether you want change of job, Correct. change of role, change of city, change of company, or complete come out of job and do something else. सो डज दिस हेल्प, क्या ये उन लोगों के लिए होता है जो कहीं ना कहीं या तो डिस्ट्रैक्टेड हैं या दे आर नॉट एबल टू डिसाइड थिंग्स इजीली, या दिस इज फॉर एवरीवन?
हैरी पॉटर का वॉन्ड किसको नहीं चाहिए, हाँ, जादू की छड़ी किसको नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स। सिर्फ उस इंसान को नहीं चाहिए जिसको पता ही नहीं है कि वो जादू की छड़ी से क्या कर सकता है। सो एनीबडी हु इज एरोगेंट, हु इज ओवर कॉन्फिडेंट, हु इज फाइन बीइंग वेयर दे आर, उसे लाइफ कोच नहीं चाहिए। अच्छा, उस इंसान को भी नहीं चाहिए हु इज नॉट विलिंग टू बी वल्नरेबल। बट दैट्स वेरी डिफिकल्ट ना। दैट्स वेरी इजी। वल्नरेबिलिटी में आपको कुछ भी नहीं करना होता, इट इज फुल्ली ट्रांसपेरेंट एंड यू डोंट हैव टू गो एंड ट्रांसपेरेंट टू द वर्ल्ड बट एटलीस्ट टू योर कोच। पर सर, डू पीपल ओपन अप इजीली? क्योंकि वो एक लेयर जब तक आप बना के रखते हो बहुत टाइम से। सोच के देखो, दाई से पेट छुपाओगे तो बच्चा कैसे होगा? इफ यू वांट आउटकम फॉर समथिंग इन योर लाइफ, if you are hiding your true self with your coach, करेक्ट। will you get result? So that vulnerability is very very important, and please do not sign up a coach unless and until you have a rapport building with the coach. करेक्ट, करेक्ट। So there is always an initial conversation. You have an initial conversation with the coach. You tell them what you want. You will ask about them. You will ask how would they do it, how it goes. Till the time you are not comfortable, do not sign up with a coach. करेक्ट, करेक्ट। But once you sign up with a coach, पूरी गीता बाश नहीं होगी. बिल्कुल। You have to go right from start till the end. करेक्ट। तो do not rush, and it's not like कि आपने एक लाइफ कोच से बात की और उसके साथ एक सेशन लिया. No, it doesn't work like that. करेक्ट। You take a session, then there is the outcome of the session, you implement that, then you come for another session, you discuss what really happened, how you would like to change the things, then there is another outcome, you implement that. So whenever you sign up for any coach, go for 2 months, 3 months, करेक्ट, करेक्ट। 10 months, एक 12 months. प्रोसेस है बेसिकली। It's a process. करेक्ट। सो जैसे अगर हम लोग ह्यूमन बिहेवियर के बारे में अगर बात करें, अबाउट ह्यूमन इमोशंस, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं, कई बार बहुत इजी भी होता है बट अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। Right. तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज फियर, व्हाट इज द फियर दैट ह्यूमन बीइंग्स आर सबसे ज़्यादा जिसमें जी रहे हैं? Okay. Fear और doubt बहुत आसपास के इमोशंस हैं. ओके। When you believe something more than what you would like to believe, that is fear. ओके। So for example, हम बात करते हैं एक एक्टर की. That actor wants to go and perform on the in front of the camera, and they have a belief, I won't be able to do it. अच्छा। I won't be able Able to to do it. do it, हाँ। Whereas they have signed up for it. हाँ। तो इसका तो सवाल ही नहीं उठता. Now this will create doubt. Now they don't want to go here. They want to go here, but they are going again and again here. So some other belief is more powerful than the belief what they should be having. करेक्ट। And to avoid that, they will keep on thinking, keep on contemplating कि अब इससे क्या हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो, my wardrobe malfunction हो कुछ हो जाए। है ना, या मैं फिसल जाऊं, या whatever. When you are not willing to make mistakes, when you are making something so significant, fear actually is false evidence appearing real. So you have made this as your reality. Doubt is 100% belief in something you don't want. करेक्ट। So from moving from here to there, you can work with a life coach, a facilitator. यू मीन कि डाउट तब क्रिएट होता है जब आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, फिर भी आप विश्वास कर रहे हो. फिर भी आप विश्वास कर रहे हो कि मुझे उस तरफ शायद जाना चाहिए या वो करना Absolutely. चाहिए, बट इनर सेल्फ इस की नहीं चाहिए शायद, तभी उसने डाउट क्रिएट किया। Correct. And sometimes, sometimes that is not the path that you should be taking. You have a different path. So if something is not happening in your life, maybe something else is going to contribute. And deep down, आपकी अंतरात्मा जानती है. Actually, while we say अंतरात्मा, it's actually the higher self. हायर सेल्फ। So that core part of your soul is your higher self. करेक्ट। That has some path for you. So if something is not happening, कोई बात नहीं. It's हायर सेल्फ perfectly सब में alright. प्रेजेंट होता है। Actually, we come as a small part, हाँ। soul.
हाँ and then there is a higher self. After death, we actually get integrated again. करेक्ट. So that connection is always there. Yeah. गीत वी हियर अ लॉट अबाउट, हम लोग काफ़ी सुनते हैं आजकल कि सेल्फ लव के बारे में कि हाउ यू शुड प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, और व्हाट इज दिस अबाउट एंड हाउ पीपल शुड टेक इट, व्हाट इज दिस? अकेले पैदा हुए हो ना, तो आप अपना साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? करेक्ट. दिस इज व्हाट इज सेल्फ लव. जब आप अपने आप को ही भूल जाते हो, आप ही आपसे प्यार नहीं करते, तो आप किसी भी रिलेशनशिप या किसी भी सिचुएशन में आप जाएंगे तो वो इंसान जा रहा है जो खुद से प्यार नहीं करता. नहीं करता. इट इज़ लाइक यू आर रनिंग अ बोट रेस और आप ही ने अपनी बोट में छेद किया हुआ है. ओह. So how can you go ahead without self-love? I think one of the thing that the work that I do, I would like to take it to kids, and it can be any age. It can be 6 years old, 7 years old. It can be 18 years old. Anybody. I would like to start a program very soon, करेक्ट. which will be only for kids. ओके. The core purpose is ये चीज़ बचपन में सिखानी चाहिए that please do not go out looking for acceptance, approval, love from someone else, yeah. appreciation, compliment. You need to know that you are good, यस. right? The power of choice, जिसे हम free will भी बोलते हैं, वो सबके पास है. The power of choice is the biggest power you have. Do not sell it for approval. People have been selling it for approval. अपनी choice के लिए वो validation मांगते हैं. करेक्ट. वो खत्म हो जाएगा जब सेल्फ लव होगा. किसी को वैलिडेशन की जरूरत नहीं है. यू हैव अ माइंड, यू हैव अ हार्ट, यू हैव अ सोल विच इज गोइंग टू गिव यू द बेस्ट, बट बिकॉज इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट, सोसाइटी एंड अदर फैक्टर्स. करेक्ट, उनकी गलती नहीं है, वो अपना कर रहे हाँ, वो हैं. अपना काम प्रॉब्लम कर रहे आपकी है. जी. इफ यू आर एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग एज अ स्पॉन्ज, Correct. आपने ये भी देखा कि वो आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा. हाँ, No. क्योंकि सब चीज़ें सबके लिए काम नहीं करती हैं, ये भी हो सकता है. बिल्कुल नहीं करती हैं. सबको शादी करने की ज़रूरत नहीं है, सबको बच्चे पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, सबको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, और किसी किसी को तो ज़िंदगी में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू विश टू डू, यू कैन. इट्स अ चॉइस. एवरीथिंग इज ऑप्शनल. ये बात तो सही है, बिकॉज नॉर्मली ये चीज़ मैंने कुछ टाइम पहले रियलाइज़ करी कि ज़रूरी है क्या कि आपको कुछ करना ही है, क्योंकि आप वैसे नॉर्मली अगर किसी से मिलते हो, क्या करा तुमने, क्या करोगे आगे चल के. बट हु आर यू टू आस्क? हाँ. So one of my book is My Life, My Rules, which is a journey of a girl who I met. Actually, I had met अच्छा. her in Mumbai when I was doing my advanced coaching program, and that book is about conversation between her and me. ओके. In just those 2 days, she was coached, and she says, "Now I get it. My life, my rules." माय So रूल. that is the name of my book, My Life, My Rules. And it is about self-love. It is about acknowledging yourself. It is about not getting influenced by things which don't matter. सर, तो क्या यही सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ को मतलब कहीं ना कहीं जन्म देती हैं एक तरीके से, अगर मैं बोलूँ तो, विच इज़ लाइक लो सेल्फ इस्टीम इश्यूज जो होते हैं, या कॉन्फिडेंस इश्यूज हैं कि आप में कैपेबिलिटीज़ हैं, आप में टैलेंट है, यू कैन वर्क हार्ड ऑल्सो, बट स्टिल आपकी शायद सेल्फ इस्टीम या कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, या सेल्फ क्रिटिसिज्म भी बोल देती हूँ. सोसाइटी बाद में जज करेगी, यू आर जजिंग योर सेल्फ पहले. बिल्कुल सही कह रहे हो आप. जब कोई पैदा होता है तो क्या वो अपने साथ मैनुअल लेके आता है कि मुझ में ये गलत है, मुझ में वो गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए? नो, nobody comes with a manual. ऑफ कोर्स. They are here to experience life, all facets of it. But what happens is, we love ourselves genuinely. When we are kids, we have seen kids holding themselves like Yeah, that. yeah. They can also kiss themselves. Yes, yes. Yeah, if they could kiss themselves on cheek, they would have done करेंगे, that. ऑफ कोर्स. They love watching themselves in the mirror. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप आसपास बाकी लोगों को देखते हो कि सेल्फ लव इज सेल्फिश. सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश, इट इज सेल्फ इश्क. सेल्फ इश्क. अपने आप से प्यार करो, क्योंकि Sweet. कोई और तो कर ही नहीं सकता. ये चीज़ आई वांट टू हाईलाइट, क्योंकि देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन सेल्फ लव एंड सेल्फ बीइंग सेल्फिश. दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं.
पीपल उस दोनों को कई बार लोग उसको कंफ्यूज कर देते हैं, तो बोथ द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट एंड इट्स अ वेरी लवली थिंग दैट यू सेड ऑफ कोर्स. एंड सेल्फिश से भी लोग इतना घबराते हैं, बट क्या प्रॉब्लम है सेल्फिश में? अगर आपको लगता है आप सेल्फिश नहीं हो, आप पक्का सेल्फिश हो. हाँ, आपको पता भी नहीं है. आप अपनी फैमिली मेंबर्स से रिस्पेक्ट करते हो, प्यार करते हो, किस लिए? ताकि बदले में वो भी आपसे प्यार करें, रिस्पेक्ट Exactly. दें, आपको सपोर्ट करें. एग्जैक्टली व्हेन समबडी इज वूइंग समवन, गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, डेटिंग, वो क्या क्या करता है पाने के लिए ना कुछ. तो सेल्फिश तो आप हो. बट जस्ट यू जस्ट डोंट नो अबाउट इट. You just don't know. You do things for each other so that you get in return, and you always compare. करेक्ट. If with friends also, you say that I have made this new friend, but she doesn't return my calls, she doesn't give me a call on her own. So, what is that? करेक्ट. You are selfish, and even that person is selfish. So, हम selfish by default हैं. करेक्ट. करेक्ट. अब थोड़ा सा प्यार भी कर लो. प्यार भी देखो. क्योंकि गीत मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे काइंडनेस मिस आउट हो रही है अनफॉर्चुनेटली. चीज़ें आजकल जो हेट्रेड हैज़ टेकन प्लेस, आई एम नॉट सेइंग कि कम्प्लीटली ऐसा हो चुका है. लव एंड फ्रेंडशिप स्टिल एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है. तो इनर वुंड्स के बारे में अगर हम बात करें एक इंडिविजुअल की, व्हाट इज़ दैट अबाउट? God. So, मैं थोड़ा सा ना डाइग्रेस करूँगा. जी. काइंडनेस आपने बोला था, उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है. काइंडनेस इज गिविंग समवन व्हाट दे कैन रिसीव. ओके. अगर आप किसी को कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती करते हो एंड दे डोंट वांट टू टेक इट, इट इज़ नॉट काइंड. सो काइंडनेस इज नोइंग व्हाट द अदर पर्सन डिजायर्स एंड चूजिंग टू गिव इट और नॉट, करेक्ट. rather than forcing something. राइट. Most of the wounds are when somebody is not being kind to you. When somebody is forcing on you something by creating fear or guilt or shame. So छोटा बच्चा नहा के निकला और आपने उसको बोला शेम. shame shame. But what is shame about it? करेक्ट. करेक्ट. I mean, he is not the only one born with the body. ऑफ कोर्स. Right? So that is unkind, creating shame. And when that person, when that kid, touches his private parts, they create a guilt as if Right. what he's done, right? True. Now that wound, if the child carries along, he would never be comfortable. He would think anything which is related to body and private part is something टू बी गिल्टी अबाउट. to be guilty about, to feel shameful about, Right. to be fearful about, Right. कहीं किसी को कुछ दिख ना जाए. दिखना जाए. Right? Now that child goes into a relationship. That child goes into, let's say, bodybuilding, or goes in front of camera. कैमरा. Will that person be an actor? बहुत डिफिकल्टी आएगी उसको. Almost Very, impossible. almost impossible. Unless and until that person is able to heal that part which was inculcated during the childhood. So, Geet, let's talk about this also कि healing, what is this about, और कैसे इसको आप अपनी लाइफ में इम्बाइब कर सकते हैं कि पीपल नो अबाउट द पेन, कि प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा हो रहा है हमारी लाइफ में, वैसा हो रहा है, बट उसको सही कैसे करना है? बहुत बढ़िया. हाथी का जब बच्चा होता है तो उसको एक छोटी सी रस्सी से बांध देते हैं. ओके. वो बड़ा हो जाता है और रस्सी वही होती है. हाँ. वो बंदा रहता है, उसको लगता है ये रस्सी मेरे से ज़्यादा स्ट्रांग है. हाँ. Healing is knowing that I'm more powerful. I thought of that as a child. This rope is nothing. The inner child inside that elephant was making a decision कि ये rope मुझसे ज़्यादा strong है. करेक्ट. जब वो हाथी बड़ा हो जाता है, the same inner child is talking about the rope being stronger. कि उसको पता ही नहीं कि ही इज Exactly. स्ट्रॉन्गर. Healing is being aware that happened. It has no control over me today, and I take my control. Correct. That's healing. So healing is nothing when you work on self-development, on your growth, and a lot of people do not want to heal because उन्हें लगता है वो बहुत painful है, but उन्हें ये नहीं समझ में आता अभी जो life है वो कितनी painful है. So this is a very good thing that you said
कि वाई आर पीपल, क्यों वो जिद पे अड़ जाते हैं कि मुझे हील नहीं होना या मूव ऑन नहीं होना है लाइफ में? बिकॉज उनको ऐसे तो उनको पता है कि मूविंग ऑन इज द बेटर ऑप्शन, बट शायद वो हीलिंग उनको ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही, रैदर देन बीइंग इन पेन इज मोर कंफर्टेबल टू देम। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो उससे रिलेटेड भी ट्रॉमा हो सकता है बचपन में, व्हेन दे ट्राइड हीलिंग, Correct. यू नो, दे वर अनसक्सेसफुल एंड दे वर मेड रॉन्ग। दे सेड अब मैं आज के बाद करूंगा ही नहीं। सो कुछ बच्चे इनिशिएटिव लेते हैं बचपन में। जब वो इनिशिएटिव लेते हैं, उनके कंट्रोलिंग पेरेंट्स, हेलीकॉप्टर मॉम एंड हेलीकॉप्टर डैड, दे आर कंट्रोलिंग द किड सो मच कि अब वो बोलता है यार जब आप ही ने गाड़ी चलानी है तो छोड़ो, छोड़ो, मैं क्या तो करूँ? मेरा करियर भी आप डिसाइड कर लेना, जॉब भी कहाँ करनी है आप डिसाइड कर लेना, लड़का भी मेरे लिए आप डिसाइड कर लेना, correct. बट आई विल मेक श्योर योर लाइफ इज नॉट हैविंग इवन अ मोमेंट ऑफ रेस्पाइट। क्योंकि आप सारा दिन हेलीकॉप्टर ही कर रहे होगे ना, लो करो अब, मैंने तो अपने मज़े कर लेने, आपके हिसाब से मैं रिबेल हूँ बट मैं सब कुछ आपके हिसाब से कर रहा हूँ। सो समवेयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे स्टॉप एंड डिसाइड कि अब मेरे को हीलिंग हील नहीं करना है, वो कॉम्प्लेक्सिटी अंदर ही अंदर क्रिएट हो जाती है। सेकेंड, द एनवायरनमेंट इज नॉट कंड्यूसिव। उनके आसपास जो लोग हैं वो खुद हील नहीं होना चाहते। जब वो देखते हैं उनके पेरेंट्स भी अवॉइड करते हैं, उनके पेरेंट्स कारपेट के अंदर बस डाल दो, अभी छुपा दो, अभी बात नहीं करनी है इस बारे में, टेम्पररी डिस्कम्फर्ट ना हो, उस वजह से वो उस चीज़ को ढक उस देते वजह हैं। से लाइफ लॉन्ग डिस्कम्फर्ट इज ओके। पर सच्चाई है, बात करने से ही बात बनती है। करेक्ट, करेक्ट। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, और बात करने से ही, जैसे कि आपने कही, Right. बात करने से ही बात बनती है। राइट, एंड ऑल्सो डिड दे कम अक्रॉस समवन जिसने बोला कि हीलिंग नाम की चीज़ पॉसिबल है, देखो मेरी हुई है, और समवन हु सेज हु क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट ऑफ हीलिंग। समटाइम्स एक्सीडेंटली यू कम अक्रॉस एक फरिश्ते की तरह, आप किसी से मिलते हो और वो एक सेकंड के लिए आपकी लाइफ में आता है और कुछ ऐसा क्रिएट करता है कि वो हीलिंग हो जाती है। ओके। दिस गर्ल मरिया, हु आई हैव नेवर मेट, who is from I think Sweden, एंड मैं उससे कभी बात नहीं की है। वो सिर्फ वहाँ पे मेरे पास आके बैठी, हाय हाय हुआ, और उसके बाद उसने मेरे से पूछा व्हाट डू यू डू, एंड आई सेड आई डोंट नो, और वो निकल गई। एंड उसने बोला यू ऑलवेज Always नो। know. वो दैट वन ड्रॉप वाज इनफ फॉर क्रिएटिंग द एंटायर लाइफ दैट आई लाइफ हैव राइट चेंजिंग नाउ। थिंग वाज देयर। सो 8 साल हो गए, यू नो, मोमेंट टू मोमेंट, मोमेंट टू मोमेंट लाइफ इज चेंजिंग। लाइफ कोच करने के पीछे क्या आपका सिर्फ जो इंसिडेंट आपने बताया, वाज दैट द ओनली मोटिवेशन, कि देयर वाज सम पास्ट लाइफ मेमोरी आल्सो जिसने आपको डायरेक्ट किया कि नहीं मुझे ये करना चाहिए? देखो ऐसा है, सबसे पहले तो एक्नॉलेजमेंट मेरा भी यही था, सेल्फ क्रिटिसिज्म यही था कि यार मैं डिफेक्टेड पीस हूँ। पर दिस इज, आई इंस्टेड ऑफ रॉन्गनेस आई सेड इसको करना तो चेंज है। तो उसको चेंज करने के लिए क्या क्या रास्ते हैं, तो मैं जब 12 साल का था ना, तो एक्सीडेंटली मेरे हाथ में पामिस्ट्री की किताब आ गई, अच्छा। तो वो किताब पढ़नी शुरू की। 13 साल के उम्र में ओशो रजनीश की किताबें आ गई। 15 साल की उम्र में मैं 27 किताबें पढ़ चुका था एट दैट एज। उसके बाद वो जो प्रोग्रेशन था वो चलता रहा। सो आई डिड नॉट टेक द कॉमन पाथ्स जो बाकी लोग करते हैं। Correct. मेरा पाथ हमेशा अलग ही अलग रहा था। है। नाउ बिकॉज आई हैव वॉक्ड द पाथ्स others have not walked, I have more experienced. I have more experience, more emotions, more feelings than most people ever encountered. तो मेरी जो लाइफ है या मेरा जो हायर सेल्फ है, it has been directing and guiding me to take all these experiences which I can put in words. करेक्ट, करेक्ट। For example, some people come to me and they say, गीत तुम ये बिजनेस करते हो, तुम्हारी वर्कशॉप में इतने लोग कैसे होते हैं, what is it that you do? तब मैंने उनको बताया कि मैंने अपना करियर जो स्टार्ट किया था उससे पहले मैं बायो साइंस स्टूडेंट था। फिर मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया और फिर उसके बाद 3 महीने में बोर हो गया और मैंने बीए में एडमिशन लिया, जहाँ पे मेरा वोकेशनल सब्जेक्ट था रिटेलिंग एंड ट्रेड, विच इज़ नथिंग बट मार्केटिंग। साथ में मैंने पीजीडीएसएम किया। मेरा पहला जॉब सेल्स में था, दूसरा जॉब मार्केटिंग में था, तीसरा जॉब एडवर्टाइजिंग में था, चौथा वॉज इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। Okay. आई वॉज अ पीडीपी हेड। उसके बाद नेक्स्ट जॉब मेरे को करना नहीं था। आई क्विट माई जॉब एंड आई स्टार्टेड माई रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी विच आई रैन फॉर 6 years. उसके बाद आई वेंट बैक टू कॉर्पोरेट एंड आई वॉज अ प्लेसमेंट हेड।
From being placement head, I went into HR. I was in a IT education company. From there, I moved to oil and gas sector. From there, I moved to real estate. From there, I became a coach. स्विच्ड अ लॉट. I switched a lot. इतने ट्रैक चेंज करने के बाद बाल तो सफेद हो ही जाएंगे. So when somebody comes to me and they say, "How do you know you are only getting gray hair juice?" तो जो निचोड़ है इतने सालों का वो आपको मिल रहा है. करेक्ट. तो हैविंग ओवरऑल एक्सपीरियंस इट एक्चुअली मैटर्स. Right. और मैं आया ही दुनिया में शायद यही करने था. मे बी. तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो कोचिंग वाला काम था वो मेरे को बहुत अच्छा लगा. ऑल्दो Nice. आई डू नॉट कॉल माई सेल्फ अ कोच while I give coaching session, but I am more of a facilitator. यस यस वी So मेंशन दैट. facilitator is someone जो बिना आपके स्टेयरिंग को हाथ लगाए आपको गाड़ी चलाना सिखाएगा. करेक्ट. आपको कहाँ जाना है वहाँ पे लेके जाएगा. इवन इफ ही डजंट हैव जीपीएस बट ही विल टीच यू हाउ टू यूज जीपीएस. करेक्ट करेक्ट. तो वो जो जीपीएस आपको यूज करना सिखा रहा है वो आपका कोच है. तो वो क्या आपका आपका फैसिलिटेटर जो है. प्रोफेशन है वो आपको खुद को भी हेल्प करता है आपकी पर्सनल लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या बिल्कुल हीलिंग्स हेल्प होती हैं? करता है. जो मैं वो चीज़ बेचता ही नहीं जिस पे मेरे को विश्वास ना हो, जो मैं खुद ना यूज़ करता हूँ. जैसे आप वो कहावत है ना, हलवाई को अपनी मिठाई खानी पड़ती है. जब मैं अपनी मिठाई नहीं खाता तो मैं बेच भी नहीं पाता. करेक्ट. तो मुझे खुद पे पहले काम करना पड़ता है. लाइक जैसे ये हील योर लाइफ फैसिलिटेटर हूँ मैं, तो उसकी 2 दिन की वर्कशॉप अब मैं कंडक्ट करता हूँ. वो 2 दिन की वर्कशॉप पहले मुझे अटेंड करनी पड़ी. वो करना कंपलसरी है. पहले मैं 2 दिन की अटेंड करूँगा, फिर उसके बाद 5 दिन का मेरा फैसिलिटेटर ट्रेनिंग शुरू होगी. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. So, whatever I learned there, I am using it. So, like for example, I use affirmations, I use visualizations, other tools which I know. I use all of them. लाइक on अभी हम myself. लोग बहुत सुनते हैं मैनिफेस्ट करो मैनिफेस्टेशंस के बारे में हम बहुत सारे पोस्ट भी देखते हैं ऑनलाइन इन रियल लाइफ आल्सो. सो डज दिस रियली वर्क? Yeah, manifestation is nothing but creating your life. देखो ऐसा है, आप चाहो या ना चाहो आप मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हो. आपको लगे कि आप वो मैनिफेस्टेशन सीख के करो या वैसे करो, यू आर डूइंग इट. या. Every moment you are manifesting with your thoughts, feelings, emotions. एंड बिफोर वी वाइंड अप बट आई वुड स्टिल लाइक टू से कि कोई प्रैक्टिकल एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें जनरली इन दैट वो जो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो. हाँ, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, द यूनिवर्स हैज़ योर बैक बट डू यू हैव योर बैक. तो क्या आप अपना साथ दे रहे हो? अगर आप अपना साथ नहीं दे रहे हो तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, आई वुड लाइक यू टू राइट दिस विथ यू. I love myself. I will be there for you. And you are looking at yourself in the mirror and you are saying, I love you. I will be there for you because I care for you. So repeat this in front of mirror. I love you to yourself and I will be there for you because I care for you. So this is the message when you are giving to your inner child, that is very, very powerful and it can be life changing. And this was a wonderful episode with one and the only Geet Batra. We talked about a lot of things about life coaching, about healing, about inner self, self love और भी बहुत कुछ. So I hope ये episode आपको बहुत अच्छा लगे. Thank you so much for watching Living Unicorns. फिर मिलते हैं. Thank you.